हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें 3 पोएम्स हैं, द सिक रोज एंड लंडन एंड द टाइगर। लेट अस स्टार्ट विद द सिक रोज। ओ रोज, thou art sick, the invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy bed of crimson joy and his dark secret love. Does thy life destroy? In this short and beautiful poem, Blake uses symbols connecting the sensuous with the emotional and the moral meanings. As a visionary poet, William Blake uses symbols in an elusive way. Elusive means always on the move. मतलब ठहरी हुई नहीं है, elusive है. Poems such as these cannot be fully understood, although we enjoy reading them. The three levels, physical, emotional and moral, are experienced at the same time. तीनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जाता है. Apparently, the poem मतलब ऊपर ऊपर से अगर देखें, the poem is about a rose and a worm. But it is obvious that there is a hidden meaning in the poem. The things and the situation described in the poem are all symbolic. They imply something more than what they are. Blake uses contrast as a poetic device to convey his meaning. Contrast दिया है इसमें, जैसे rose है and worm है. Thus rose and worm in joy and destroy are paired off, है ना. rose के साथ worm है and joy के साथ destroy है. The second word in each pair suggests evil, while the first word in each pair suggests beauty and happiness. The implication seems to be that the dark secret lover, the traveling in the stormy night, found out the happy state, bed of crimson joy of the rose, and destroys its life, while good or virtue is indicated by the bed of crimson joy. Evil is indicated by a number of words: sick, warm, night, howling storm, dark, secret, destroy. A liberal use of words suggesting evil as against a single phrase suggesting happiness perhaps shows that good is surrounded by evil. तो इसमें बताया गया है कि रोज एंड वॉर्म है ना, वो जॉय हैं, एंड डिस्ट्रॉय आर पेयर टुगेदर मीन्स दोनों चीज़ें बताई गई हैं. सेकंड वर्ड इन ईच पेयर सजेस्ट एविल, है ना, और जो फर्स्ट है वो ब्यूटी और हैप्पीनेस को दर्शाता है. एंड द डार्क सीक्रेट लवर ट्रैवलिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, ऐसा बताया गया है कि डार्क जो सीक्रेट लवर है वो ट्रैवल कर रहा है स्टॉर्मी नाइट में एंड फाउंड आउट द हैप्पी स्टेट, तो उसको हैप्पी स्टेट मिलती है, बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय मिलता है ऑफ द रोज, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयज इट्स लाइफ, वाइल गुड एंड वर्च्यू इज इंडिकेटेड बाय बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय. एविल इज इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स. एविल जो है वो सिक, वॉर्म, ये सब चीज़ों से इंडिकेट किया गया है. और liberal use of words suggesting evil as against a single phrase suggesting happiness and perhaps shows that good is surrounded by evil. Again, although we know that the worm stands for evil, we do not know the nature of that evil. Evil तो है but उसमें हमें नेचर का पता नहीं है. इट मे बी लस्ट. एविल मतलब कौन सा एविल है? लस्ट है, सिन है, डिस्ट्रक्शन है और डेथ है. द मिस्ट्री इज कंपाउंडेड, जस्ट वेट, द मिस्ट्री इज कंपाउंडेड, मिस्ट्री कंपाउंड कर रही है, एक के बाद एक हो रही है, बिकॉज द वॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज इनविजिबल. वॉर्म जो है वो इनविजिबल बताया गया है. इट इज़ एंगेज्ड इन सीक्रेट एक्टिविटीज़, बहुत ही सिक्रेटिवली अपना काम कर रहा है. फाइंडिंग आउट द बेड, एक्सप्रेसिंग डार्क सीक्रेट लव, और फाइंडिंग आउट द बेड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है. वो बेड क्या है? फ्लावर की बात की गई है ना. एक्सप्रेसिंग डार्क सीक्रेट लव, और वो डार्क सीक्रेट लव एक्सप्रेस कर रहा है. द रोज विच स्टैंड्स फॉर प्योरिटी और इनोसेंस इज परहैप्स ruined बाय द वार्म एक्सपीरियंस. The rose which is a symbol of love is perhaps destroyed by selfishness, जो कि क्या है? warm है.
द रोज विच इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज wrecked बाय जेलिसी, वो क्या है, वॉर्म है, ठीक है. हेरोल्ड ब्लूम फाइंड्स अ ह्यूमन पैरेलल इन दिस एलिगोरिकल पोएम. अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, बोलते हैं कि द पोएम attacks the myth of female flight and male pursuit, or female resistance and male destruction. इसमें क्या है, फीमेल फ्लाइट मतलब कहीं भाग रही है, कहीं जा रही है और आदमी उसका पीछा कर रहा है, या तो मेल जो है, फीमेल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस कर रही है, और मेल जो है उसको बर्बाद करने की डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है. वेयर द रोज crimson bat is concealed, the destruction become a social ritual. जब हम क्रिम्सन बैट की बात करते हैं ना, रोज़ की क्रिम्सन बैट की बात करते हैं, तो डिस्ट्रक्शन जैसे कि रेप मैरिज की बात हो रही है, बिकम अ सोशल रिचुअल, एक सोशल रिचुअल बन जाता है. द रोज़ इज़ एम्प्लॉयड बाय द पोएट एज अ पर्सनल सिंबल विच इज़ केपेबल ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. रोज़ की तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं. द पोएम मेक्स वन थिंग क्लियर, अ क्रिम्सन रोज़ हैज़ बीन एंटर्ड एंड सिकंड एंड डिस्ट्रॉयड बाय अ वॉर्म सीक्रेटली. जो क्रिम्सन रोज़ है, जो रेड कलर का रोज़ है, वो क्रिम्सन थोड़ा पिंकिश जैसा कलर होता है, रेड प्लस पिंक कुछ ऐसा जैसा कलर होता है, तो वो एंटर कर वॉर्म जो है उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसको वो डिस्ट्रॉय कर जाता है. दिस डिस्ट्रक्शन में सिम्बोलाइज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सीक्रेसी, डिसीट, हिपोक्रेसी एंड पेन. अच्छा, उसके बाद हम जो है पोएम का नेक्स्ट पोएम करेंगे लंदन. वो भी एक बीटर एक्सपीरियंस ही है, लंदन. I wander through each chartered street near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind-forced manacles I hear. How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and hapless soldiers' sigh runs in blood down palace walls. But most through midnight streets I hear how the youthful harlots curse, blast the new-born infant's tear, and blights with plagues the marriage hears. Just wait. This poem on the literal level is rather easy to understand. वैसे इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. It is clear that it is a social and economic protest, but the poem is more complicated than this. Because the mind forced manacles, मीन जो हथकड़ियाँ हैं ना आदमी के दिमाग की, must be approached on the allegorical and anagogical levels. Man has forced these manacles himself. अपने आप ही आदमी ने अपने आप को, अपने दिमाग को जंजीरों में जकड़ लिया है. The reason, which has an important place in the 18th century, exercises tyranny and hence mind-forced manacles. Reason, nature and society, which are highly valued in that age, have forced their own tyrannies. Reason, nature, society, which are highly valued in that age, have forced their own tyrannies. Tyrannies means अत्याचार करना. उस एज में जो है ना, रीज़न, नेचर एंड सोसाइटी वगैरह पे बहुत ध्यान दिया जाता था, हाईली वैल्यूड थी ये चीज़ें, है ना, तो उनकी वजह से अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया था. दीज आर द ट्रिपल गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन. किसको? रीज़न, नेचर एंड सोसाइटी को ट्रिपल गॉडेस बोला गया है डिस्ट्रक्शन की. एवरी वन एंड एवरी थिंग, द स्ट्रीट्स एंड द रिवर आर चार्टर्ड, दैट इज़ यूज्ड commercially. The word ban may refer to Pitt's ban on people's liberties. मतलब जो है लोगों की liberties पे ही बैन लग गया था. The nation is sick as weakness, woe and fear bite it. The child chimney sweeper, the adult soldier, the young prostitute are living testimony to the neglect of Christian ideals and humane personal relationship. Blake saw marriage as an institution
इन्वेंटेड बाय फॉलन मैन। वो बोलते उनको ना मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे वो नहीं था, मतलब फेथ नहीं था, वो नहीं अच्छा मानते थे इसको। लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन इट ऑल्सो लिमिट्स फ्रीडम। वो बोलते थे कि इससे फ्रीडम आदमी की कम हो जाती है। हेंस मैरिज इज़ अ हर से, मैरिज इज़ अ हर से। ओके, जस्ट वेट। हर से होता है अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, ऐसा मानते हैं उसको, ठीक है। ओके, नाउ हम पहुंच रहे हैं, कौन सी पोएम करें हम? द टाइगर। Let us start. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burned the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? What the anvil, what dead grasp? Dare its deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears and watered heaven uh, with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hands or eye dare frame thy fearful symmetry? This is not only Blake's most famous poem, but one of the great poems in the English language, ऐसा बताया गया है. The first thing we notice in this poem is the unusual spelling of the word tyger, tiger. Although Dr. Samuel Johnson mentions it as an alternative form of the more कॉमन स्पेलिंग्स, मतलब वो बोलते हैं जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकती है टाइगर की स्पेलिंग. टाइगर, ब्लेक्स स्पेलिंग कन्वेज अ यूनिक फीलिंग, लेकिन जो ये जो पोएम है ना, ये यूनिक फीलिंग बताती है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट फॉर ब्लेक a poem is not a group of words presented in a linear fashion on a page, but a poem is a visual object. जो ब्लेक की पोएम है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है जो कि एक लीनियर फैशन में एक पेज पे लिख दी गई है, बट अ विजुअल ऑब्जेक्ट है. ये पोएम इज़ अ विजुअल ऑब्जेक्ट. हिज एनग्रेविंग एंड पेंटिंग आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज वर्बल आर्ट. उनकी जो एनग्रेविंग या पेंटिंग है ना, वो उनका वर्बल आर्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है. मतलब उन्होंने कोई विज़न देखा, फिर उसको उन्होंने कुरेद कर उनको एनग्रेव करके उसको लिखा और उसकी पिक्चर भी बनाई. दस अ पोएम बाय ब्लेक इज़ मेंट टू बी सीन एंड रीड. उसको देखा भी जाता है और उसको रीड भी किया जाता है. ओनली देन इज़ इट्स फुल इम्पैक्ट फेल्ट. सो द अनकन्वेंशनल स्पेलिंग रीइंफोर्सेस. जो अनकन्वेंशनल स्पेलिंग है ना इसकी TYGER, वो इन्फोर्स करती है, वो इस चीज़ पे जोर डालती है, आवर सेंसेस ऑफ वंडर एट द ब्यूटी, फियर्सनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर. तो हमें जब हम उस पर ध्यान देते हैं ना, इस पोएम को पढ़ते हैं, तो टाइगर की स्ट्रेंथ, उसकी जो निडरपन है या ब्यूटी है, उस पर हम बहुत ही अचंभित हो जाते हैं. आवर एस्टोनिशमेंट इज़ एक्सप्रेस्ड. हमारी जो एस्टोनिशमेंट, जो हमारी हम चकित हो जाते हैं ना उसको देख के, तो वो एक्सप्रेस की जाती है थ्रू अ सीरीज ऑफ 14 क्वेश्चंस इन अ स्पैन ऑफ 24 शॉर्ट लाइन्स. 24 शॉर्ट लाइन्स हैं, उसमें 14 क्वेश्चन किए गए हैं, 14 क्वेश्चन किए गए हैं 24 पोएम्स, 24 शॉर्ट लाइन्स में, ठीक है. 11 ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फायर्ड रैपिडली in the first 16 lines. In the first 4 stanzas, the poet attempts to increase. Argument means increase the reader's sense of wonder progressively by asking a series of rhetorical questions on the extraordinary powers required for creating an animal like the tiger.
द क्रिएटर मस्ट पोसेस द, जो बना रहा है ना टाइगर को, वो मस्ट पोसेस द सेम क्वालिटीज़ टू बी एबल टू प्रोड्यूस सच अ क्रिएचर। मतलब इतनी बड़ा, इतना ऐसा क्रिएचर बना दिया भगवान ने, उस पर बहुत ही हैरानगी हो रही है। द नेचर ऑफ द टाइगर इज़ डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ गॉड। अब नेचर ऑफ टाइगर जो है किससे डिफाइन की, कौन करेगा? नेचर ऑफ गॉड। मतलब नेचर ऑफ गॉड भी, गॉड का नेचर भी वैसा ही है जैसा कि नेचर का टाइगर का नेचर है, वैसे ही दोनों का नेचर सेम है। इन द लास्ट टू स्टेंजाज देयर इज अ रिवर्सल ऑफ दिस प्रोसीजर। गॉड इज डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ द tiger. God, who created a meek and mild creature like the lamb, dared to create the ferocious tiger. एक तो लैम बना दिया जो कि बहुत ही मीक है, दूसरा जो है बहुत ही डरावना टाइगर बना दिया। Earlier we saw that the lamb, the child and the Jesus are one and the same. शुरुआत में वो सेम थे। कौन थे? Lamb, child and Jesus. That such a God created the tiger is not comprehensible to the stars who are the agents of divine law. मतलब कि भगवान ने जो है ना टाइगर को बनाया तो लोगों को, मतलब इट इज़ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। किसी को समझ में नहीं आ रही कि यार ये कैसे हो गया, जिसने टाइगर बनाया, जिसने लैम बनाया, उसने टाइगर कैसे बना दिया, है ना। एक तो इतना मीक बना दिया, एक इतना फेरोशियस बना दिया। As Blake himself suggests, it is the contrary state of the soul. अब वो बताते हैं, ब्लेक बोलते हैं कि ये सोल की, जो आत्मा की जो कॉन्ट्रेरी स्टेट्स हैं, एक अच्छी है और एक बुरी है, वो बताया गया है। द लैम्ब एंड द टाइगर रिप्रेजेंट टू एस्पेक्ट्स ऑफ गॉड एंड टू स्टेट्स ऑफ मैन, है ना। गॉड के दो एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, इसमें दो रूप बताए गए हैं, और एक आदमी के दो स्टेट्स बताए गए हैं कि वो अच्छा भी है और वो बुरा भी है। द साउंड इफेक्ट इन द पोएम इज are striking. The meter employed is trochoic tetrameter, which is itself an unusual form. There is a good deal of alliteration and assonance, and the diphthong ai in tiger reoccurs throughout the poem. The poem may be explained in terms of the creation myth and the problem of good and evil in the world. What baffles man is that a kind God who created a mild lamb also created the ferocious tiger. It is incredible. Did he who made the lamb make thee? तो ये बहुत ही इनक्रेडिबल लाइन, ये लाइन ऐसी बताई गई है कि डिड ही हु मेड द लैम मेक दी, जिसने कि लैम बनाया उसने तुम्हें भी बनाया। द बुक ऑफ जॉब इन द बाइबल रेजेज द सेम क्वेश्चन. Now the poem is a fine example of compression, है ना। Fine example of compression means, just wait, means saying much with little. Compression का मतलब ये होता है। The question at the end of the stanza like a verb, देखो, and when thy heart began to beat, मैं फिर से पढ़ती हूँ, and when thy heart began to beat, what dread hand, what dread feet. This is the revised draft. Blake must have felt that the fragment is forceful enough and that it underscores the tone of exclamation. Now, in one sense, The Tiger is a simple and enjoyable poem. It raises the common question, how did you account for the forces of good and evil in the universe? Blake's tiger has a dual aspect. It is both beautiful and terrible, as the repetitive phrase fearful symmetry suggests. We should also remember that Blake turns from the tiger to an examination of the nature of the creator, ना। उसमें पूछा जाता है, डिड ही स्माइल एट वर्क टू सी हिज वर्क टू सी, क्या वो अपने काम को देख के हंसते हैं। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी. Okay, now there are allusions in the second stanza to daring attempts in mythology to challenge God. इसमें बोला गया है, on what wings dare he aspire? कौन से विंग्स थे, है ना। क्यों, जैसे कि कैसे पंख लगे थे कि वो एस्पायर किया उसने उसको, किन पंखों ने, कैसे पंखों पे वो सवार हुए थे कि वो एस्पायर हो गए।
तो ऑन व्हाट विंग्स डेयर हिज एस्पायर इज अ रेफरेंस टू, तो ये रेफरेंस एल्यूजन है ना, ये कहाँ से लिया गया? इकैरस, इकैरस की हमने बहुत बार ये स्टोरी पढ़ी है कि इकैरस फ्लाइंग हाई टूवर्ड्स द सन। जो एक उनके फादर का नाम मुझे याद नहीं, डी से कुछ फादर का नाम था, तो एक इकैरस को ना उन्होंने अपने बेटे को पंख लगा दिए थे, मोम के वैक्स के पंख लगा दिए थे, और बोला था कि तुम ज़्यादा ऊंचे मत उड़ना, अदरवाइज़ तुम्हारे पंख जो हैं सूरज की रोशनी से पिघल जाएंगे। बट वो इकैरस नहीं माना, और उसके पंख जो हैं वो सूर्य की रोशनी से बिल्कुल ही पिघल गए और वो नीचे गिर गया। ये स्टोरी है। तो ये एक रेफरेंस उन्होंने लिया है इसमें, विलियम ब्लेक ने। The creator of the tiger, who had burning fire in his eyes, must have had strong wings than Icarus' wings, joined by wax, which melted due to the heat of the sun. तो इसमें बोला गया है कि इकैरस के विंग्स से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर विंग्स रहे होंगे उस क्रिएटर के जिसने टाइगर को बनाया। ठीक है। In the very next line there is another question. What the hand dare seize the fire? कौन से ऐसे हाथ थे जिन्होंने फायर को रोक दिया? This is a reference to ये है Prometheus stealing fire from heaven for mankind's benefit. ये कहाँ से लिया गया है? प्रोमेथियस ही नाम है। ठीक है। सो यहाँ ये भी लिया गया है, दीज टू एक्ट्स ऑफ डेयरिंग एंड करेज आर आउटडन इन द क्रिएशन ऑफ द टाइगर। मतलब इनसे भी ज़्यादा करेज रहा होगा, बहुत ही डेयरिंग रहा होगा भगवान जिसने कि टाइगर को बनाया है। चलो यहाँ पे हमारा ये यूनिट फिनिश हो जाएगा, और 28th यूनिट आज फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।